हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आ चुके हैं 11th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक को लेके। एक्चुअली हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, तो हम लोगों ने बेसिकली 5 फॉर्मूले देखे थे। पहला दिखा था फॉर एडिशन, तो प्रोपगेशन ऑफ एरर फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, एडिशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, इट इज मैक्सिमम परमिसिबल एरर दैट इज delta z equal to delta a plus delta b. That was the maximum permissible error. For subtraction, again the maximum permissible error was plus minus delta a plus delta b. For multiplication, it was delta z by z equal to plus minus delta a by a plus delta b by b. And for division, it was again delta z by z equal to plus minus delta a by a plus delta b by b. And for measurement of a quantity raised to power, कोई क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं जो कुछ पावर तक रेज था, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला था डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस एम इंटू डेल्टा बी बाई बी, यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या था, एक पावर एन इंटू बी के पावर एन। तो ये 4 से 5 हम लोग बेसिक फॉर्मूले, 5 बेसिक फॉर्मूले हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए चैप्टर मेन करेंगे, और नए चैप्टर मेन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिकल्स टर्म्स देखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो हमको फिजिक्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। So let's start the question. क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ width and height of a rectangular block is L is equal to 12.13 plus minus 0.02 centimeter, B is equal to 8.16 plus minus 0.01 centimeter, and H equal to 3.46 plus minus 0.01 centimeter. That has been given. We have to find the determine the percentage error in its volume. इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में हमको टोटल परसेंटेज एरर क्या होगा, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड. सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट नाउ. Since we have to find the percentage error, how we can find the percentage error? So we know what we know. We know volume is equal to L into B into H. Now, what has been given? So it has been given that the length of the block is 12.13 and the error in its measurement is 0.02 centimeter. The width of the block is 8.16 and error in its measurement is 0.01 centimeter. And the height of the block is
3.46 and error in its measurement is 0.01 centimeter. Now what we have to find the percentage error in its volume. So we had the formula in the case of multiplication. Multiplication case में हमारे पास formula था, क्या formula था? Delta V by V is equal to plus minus delta L by L plus delta B by B plus delta H by H. That was our formula. याद है? Delta Z by Z is equal to plus minus delta A by A plus delta B by B. ये हमारा फॉर्मूला था. Now here how we can find the volume first. So B can be written as L into B into H. L into B into H से हमारा B निकल जाएगा. तो हम पहले B निकालेंगे. Now delta V by B. So delta V by B is equal to plus minus delta L. Delta L का वैल्यू कितना है? तो delta L का वैल्यू हमारा है 0.02 by L हमारा कितना था? L था हमारा 12.13 प्लस डेल्टा V की वैल्यू कितना है? डेल्टा V की वैल्यू हमारा है 0.01 और B की वैल्यू कितना था? 8.16 प्लस डेल्टा H की वैल्यू कितना है? डेल्टा H की वैल्यू हमारा है 0.01 और H की वैल्यू कितना है? तो H की वैल्यू हमारा है कहाँ गया? 3.46. ठीक है. Now that can be written as plus minus 2 by 1213 plus 1 by 816 plus 1 by 346. ठीक है. That can be written. कोई दिक्कत नहीं है. Now if I have to find the volume in that case, that can be written as, इसको क्या करते हैं हम लोग, हमको परसेंटेज एरर निकालना है. परसेंटेज एरर कैसे निकालेगा? तो परसेंटेज एरर हमें निकालना है कि हो जाएगा हमारा डेल्टा V by B into 100. And that is the value. Now I have to find the percentage error. So how we can find the percentage error? तो percentage error हमारा कह सकते हैं कि that will be equal to delta V by B into 100. अगर डेल्टा V by B को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो the change in volume from original volume multiplied by 100, that will be the percentage error. That can be written as plus minus 0.02 by 12.13 plus 0.01 by 8.16 plus 0.01 by 3.46. That should be multiplied by 100. And that can be written as, ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 by 12.13 plus minus plus 1 by 816 plus 1 by 346. Now that can be again written as, that is the percentage error. Percentage error is equal to, इसको पॉइंट घटा देते हैं तो हो जाएगा 200 by 1213 plus 100 by 816 plus 100 by 346. Now if I can find the value, then it should be equal to plus minus 0.1649 plus 0.1225. इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा plus 0.2890. And if I can add this should come as equal to 0.58%. That is the percentage error in the calculation. ये परसेंटेज एरर जो हम फाइंड कर रहे हैं, कभी क्या होता है कि सिंपली हम लोग को एरर फाइंड करने को बोलता है, डेल्टा V फाइंड करने को बोलता है. अगर डेल्टा V फाइंड करने को बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा V इक्वल टू, ये हमारा टर्म इधर चला जाता तो उस केस में डेल्टा V इक्वल टू हो जाता हमारा 0.02 अपॉन 12.13. जब हमको एरर बस फाइंड करना था, ठीक है, तो डेल्टा V प्लस 0.01 by 8.16 प्लस 0.01 by 3.46. और अगर इसको हम लोग V से मल्टीप्लाई कर देते हमारा डेल्टा V निकल जाता, यानी एरर मेजरमेंट में निकल जाता. बट हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर फाइंड करना है. इसलिए हम लोग को V निकालने की जरूरत नहीं पड़ी,
सिंपली हम लोगों ने क्या किया, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर दिया, दैट इज द परसेंटेज एरर। इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा परसेंटेज एरर निकल गया, दैट शुड कम्स टू बी 0.58%। नाउ 0.58% इज नॉट दैट ह्यूज एरर। 0.58% बहुत ज़्यादा एरर नहीं है, ये काम चलावे एरर है, काम चल जाएगा। मतलब अगर हम सपोज कीजिए सपोज कीजिए अगर हम 1000 ग्राम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें क्या है, तो 58 ग्राम का डिफरेंस हो सकता है, दैट इज द मीन टू से 1000 ग्राम में 58 ग्राम का डिफरेंस आ सकता है, दैट इज नॉट दैट ह्यूज मिस्टेक, ये चलेगा। सॉरी नॉट 58 ग्राम, दैट इज 5.8 ग्राम, 6 ग्राम के डिफरेंस आ सकता है लगभग। तो ये छोटा एरर है और ये नेग्लेक्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा एरर नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। So our next question is, if the errors involved in the measurement of a side of the cube, and its mass is 3% and 4% है, 4% है ना, 4% respectively. What is the maximum possible error? What is the maximum possible error in the density of material? हमको मटेरियल की डेंसिटी में क्या एरर है, परसेंटेज एरर मैक्सिमम हो सकता है, वो फाइंड करने का है, ठीक है। तो हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे, बचपन मतलब 9th क्लास मान लीजिए बचपन ही हो गया। तो 9th क्लास में उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या फॉर्मूला था, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं रो से, मास को m से, वॉल्यूम को b से, ठीक है। नाउ गिवन क्या है, इफ द एरर्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास इज 3%। हमको मास का मेजरमेंट में एरर दिया हुआ है, बट वॉल्यूम का एरर नहीं दिया हुआ, हमको लेंथ साइड का दिया हुआ है। सो नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब और साइड क्यूब। सो कैन आई से दैट डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू प्लस माइनस, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है। डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारा डिवीजन का फॉर्मूला, तो डिवीजन में क्या आया था, तो डेल्टा m बाई एम, ठीक है, प्लस माइनस प्लस डेल्टा v बाई v, चलेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा m बाई एम प्लस चेंज इन वॉल्यूम का हमको एरर तो पता नहीं है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल, समझे। यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लिखते हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल, दैट इज द एरर। जब हम कोई पावर, किसी क्वांटिटी को पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें एरर क्या आता है, तो n इंटू डेल्टा ए बाई ए। तो हमारा वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या है,
तो वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब है, तो डेल्टा वी बाई वी यानी एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल, यही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो हमारा आ गया डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एम बाई एम, लिखते हैं डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल। अब ना तो डेल्टा एम दिया हुआ है, ना एम दिया हुआ है, ना डेल्टा एल दिया हुआ है, ना एल दिया हुआ है, लेकिन दिया क्या है, तो दिया हुआ परसेंटेज एरर दिया हुआ है। परसेंटेज एरर कैसे होगा, तो अगर हम इसको सोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो ये परसेंटेज एरर क्या होता है, ये भी तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, और ये हो गया परसेंटेज एरर इन मास। तो इसको लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। सो अब ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना है, तो डेल्टा एम इंटू एम बाई 100 इक्वल टू दिया हुआ 3% प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना दिया हुआ है, तो साइड में एरर है 4%, तो ये हो गया 3 इंटू 4, तो ये हो गया प्लस माइनस 3 प्लस 12 which is equal to plus minus 15%. Clear? So percentage error in volume, in density comes out to be 15% plus minus, that is the maximum permissible error in the measurement of its volume. Oh sorry, उल्टा लिख दिया हम लोग. It has been given that the measurement of the side of the cube and its mass, उल्टा दिया हुआ, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया है। साइड में 3% है और मास में 4% है, तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 13%। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये है कि हमारा परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस 13%। क्लियर हो रहा है, कुछ होना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग फिर से। क्वेश्चन है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, ये आप लोग बना लीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error? How much will be the maximum error in the kinetic energy? In the kinetic energy obtained by measuring mass and speed. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो बन ही जाना चाहिए
क्या दिया हुआ है, तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% and 3% respectively, that is, so what has been given, it has been given that the kinetic energy को हम ले लेते हैं E से, और E इक्वल टू क्या होता है, तो E इक्वल टू होता है 1/2 इंटू mv², ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, mv² दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो 1/2 क्या नंबर है, तो क्या नंबर को मेजर करना है क्या, नंबर को मेजर करना है क्या, तो नंबर को मेजर नहीं करना, नंबर तो एक फिक्स वैल्यू है, तो इसमें कोई एरर नहीं होने वाला है, देयर इज नो एरर गोइंग टू बी इन द मेजरमेंट ऑफ 1/2, क्योंकि ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसमें कोई एरर नहीं, तो इसको भूल जाओ। तो हमारा एरर कहाँ आने वाला है, एरर आने वाला है mv² के टर्म में। सो हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, तो डेल्टा E by E into 100, that is the percentage error in the calculation of kinetic energy, and that should be equal to plus minus delta M by M plus 2 into delta V by V, clear? So delta E by E into 100 is equal to plus minus delta M by M plus 2 into delta V by V multiplied by 100, that is the percentage error in the measurement of the kinetic energy. Now that should be equal to plus minus delta M by M multiplied by 100 plus 2 into delta V by V multiplied by 100। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा M by M into 100, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इज गिवन एज 2% प्लस 2 into डेल्टा V by V into 100, वेलोसिटी की मेजरमेंट में एरर कितना है, तो 3%, तो ये हो गया प्लस माइनस 628%। So percentage error in the measurement of kinetic energy comes out to be 8%. Is it clear? I think it is clear. ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अब फिजिकल क्वांटिटी x, ये एग्जाम में आने वाला है, लिख लीजिए, एग्जाम में आता ही है ये सब। अब फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इक्वल टू a² b³ divided by c√d। If the percentage error in the measurement of A, B, C, D, in the measurement of A, B, C and D each, sorry not each, are 4%, 2%, 3% and 1%, 4%, 3%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage error in x। हमको x में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। अगर a, b, c एंड d का परसेंटेज एरर 4, 2, 3, 1 है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, जब हम लोग कोई भी क्वांटिटी को रेशियो पावर करते थे तो क्या होगा, तो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ध्यान देंगे a का पावर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा a बाई a प्लस b का पावर कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा b बाई b प्लस नीचे हो चाहे ऊपर से कोई मतलब नहीं है, c का पावर कितना है 1, तो 1 इंटू डेल्टा c बाई c प्लस d का पावर कितना है, तो 1/2, तो 1/2 इंटू डेल्टा d बाई d।
ये हो गया डेल्टा एक्स बाई एक्स का वैल्यू। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1 बाई 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया प्लस माइनस 2 इंटू व्हाट इज द परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ ए, तो द मेजरमेंट परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ इन ए इज 4%। व्हाट इज द परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ बी, 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस व्हाट इज द मेजरमेंट परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ सी, इट इज 3% and what is the percentage in measurement of D, it is 1%। तो ये 1 by 2 का 1%, 1% और 1 by 2। तो ये हो गया प्लस माइनस परसेंटेज हमारा हो गया प्लस माइनस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0.5। तो 8 6 14 3 17 17 प्लस 1 17 प्लस आधा यानी 17.5। सो व्हाट इज द परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ x, परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ x इज 17.5%। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर में बहुत हम लोग डीपली नहीं जा रहे हैं, हम लोग बेसिकली आप लोग बेसिकली नए नए अभी 10th में से आए हुए हैं, तो हम लोग बेसिक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी डीप क्वेश्चंस पे भी नहीं जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चंस पे भी हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे। बट अभी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन ही को ही लेके चल रहे हैं। वैसे इस चैप्टर से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए अब आज के लिए हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी रेडी फॉर योर आंसर्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, दैट क्वेश्चन इज गुड। द क्वेश्चन says that the time period of oscillation of a simple pendulum, the time period of oscillation of simple pendulum is t equal to 2 pi root under L by G। आई थिंक आप लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए होंगे ऑलरेडी। The measured value of L is 20 centimeter, 20 centimeter, known to have 1 millimeter accuracy। ठीक है, एंड for 100 oscillations of pendulum, it has been found to have 1 second accuracy in 90 seconds। मतलब 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकंड का टाइम ले रहा है और 90 सेकंड में ये 1 सेकंड का एक्यूरेसी रख रहा है, मतलब 1 सेकंड का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द एक्यूरेसी, व्हाट इज द
accuracy in measurement of G. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मेजरमेंट में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मेजरमेंट में क्या हमारा एक्यूरेसी है, ये हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ये फॉर्मूला है T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। क्वेश्चन हमको यहाँ पे डेल्टा जी बाई जी निकालना, जी तो उधर है, तो करते कुछ नहीं है, करते हैं कुछ काम। T को कर दो स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, मतलब तो 2 पाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर, और इधर स्क्वायर के तो क्या आ जाएगा, L बाई जी हो जाएगा। तो अब क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो G इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L बाई टी स्क्वायर। ठीक है, जी को इधर क्या है, टी स्क्वायर को इधर कैसे लगे, इसको लिख सकते हैं, ध्यान देंगे हमको क्या निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ G, सो दैट शुड बी कम एज डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट पाई स्क्वायर कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें इसको मेजर करना ही नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, इसको उसमें एरर नहीं आने वाला। जब उसमें हमको एरर नहीं आने वाला है तो हम लोग क्या निकालना है, सिंपली इसमें चलाएंगे इस टर्म में, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, नाउ ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमको गिवन क्या था, तो हमको गिवन था, तो लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और उसमें एरर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर में कितना का एरर है, 1 मिलीमीटर का, यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 90 सेकेंड 100 ऑपरेशन के लिए, और 90 सेकेंड में कितना का एरर है, तो 90 सेकेंड में एरर हमारा 1 सेकेंड का, यानी डेल्टा टी इक्वल टू। ठीक है, इसको हम चाहे तो 1 सेकेंड करके भी हम उसमें का एरर निकाल सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, 90 सेकेंड में 1 सेकेंड का एरर है, दैट इज परफेक्टली फाइन, डू नथिंग। सो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल कितना है, तो 0.1, एल कितना है 20 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है 1, टी कितना है 90। ठीक है, हमको परसेंटेज निकालना है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/200 प्लस 1/45। ठीक है, इसको रहने दें क्या, 180 को लेकर हम करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कुछ ज़्यादा करते नहीं, यहीं से सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम हो गया 90 20 का 180, तो 90 इंटू 180 9 टाइम्स में जाएगा, इससे तो जाएगा 0.1 इंटू 9 प्लस कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में जाएगा तो कितना आ गया 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो ये डेल्टा जी बाई जी का वैल्यू, तो ये हमारा आ गया प्लस माइनस पॉइंट टाइम हो जाएगा 4.9/180। नाउ आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, दैट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 4.9/180 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 49/18। and if I can calculate the value of 49/18, it should come as 2.72%, and that can be written as almost plus 3%. So now we can see how to solve the questions related to propagation of errors.
प्रोपगेशन ऑफ एरर्स पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजीली सॉल्वेबल है। थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करने की जरूरत है। जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे तो कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी इस पर हम लोग देखेंगे। अभी ये हमारे कुछ बेसिक्स और एवरेज टाइप के क्वेश्चन थे, तो इज नॉट समथिंग लाइक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। सो this is all about from the today class. Tomorrow at 10 p.m. I am going to meet you, so be ready at 10 p.m. and we will solve some questions related to the previous topic. Okay, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मैथ की क्लासेस। मैथ की क्लासेस मतलब वैसे मैथमेटिक्स जो हमको फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। तो कल रात को 10 बजे मिलते हैं सबको। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक सब देख लेंगे और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे। तो भूलिएगा नहीं सभी को, रात को 10 बजे मैं आपका वेट करूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।